سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سو پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے، پولیس کے مطابق آپ نے ریاست مخالف نعرے لگائے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس پولیس کے اس موقف پر آپ کیا کہیں گے؟ میرا نام زیب جتوئی، میرا اکیڈمک تعلق سوشیالوجی سے ہے. میں فائنل ایئر میں پڑھ رہا ہوں اور میں تنظیمی طور پر یونائٹڈ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا مرکزی ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوں ابھی. اور میری جو جماعت ہے وہ الیکٹورل ہے، ووٹ کی سیاست کرتی ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہے سندھ یونائٹڈ پارٹی. ہماری پیرنٹ ونگ جو ہے وہ ہے سندھ یونائٹڈ پارٹی سے جلال محمود شاہ. ہمارے مینیفیسٹو میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم ملک کے خلاف نعرے لگائیں یا ہم کسی ادارے کو گالیاں دیں یا ہم ایسی بات کر دیں جو کانسٹیٹیوشن سے الگ ہو جائے اور کانسٹیٹیوشن کے دائرے سے نکل جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم پورا من طلبہ ہیں. ہم نے اپنا کلچر سیلیبریٹ کیا ہے جس میں اور میری تنظیم نہیں تھے، پوری سندھ یونیورسٹی تھی. پوری سندھ یونیورسٹی نے سندھی لباس پہنا ہوا تھا. پوری سندھ یونیورسٹی میں جی ایس این کے نعرے لگ رہے تھے اور سندھ کے قومی گیتوں پر رقص کیا جا رہا تھا. یہ اگر جرم ہے، یہ اگر ملک دشمنی ہے، تو یہ ملک دشمنی پوری سندھ یونیورسٹی کے طلبہ نے کی ہے، نہ صرف ہم نے کی ہے. لیکن انہوں نے ہمارے اوپر پرچہ کاٹ دیا ہے. یہ پرچہ بالکل ہی غلط کاٹا گیا ہے. اور ہماری جو تنظیم ہے اور جو ہم جس اسکول آف تھاٹ کے ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے، سندھ کے حقوق کے لیے، سندھ کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ہم نے اسٹرگل کی ہے. اب بھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. سندھ یونیورسٹی میں پانی کا مسئلہ ہو، معیاری غذا کا مسئلہ ہو، فیسز میں جو ناجائز بڑھاوا ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ ہو، ہم نے ہمیشہ اپنے طلبہ کے لیے، بہتر تعلیم کے لیے ہم نے آواز اٹھایا ہے اور اسٹرگل کی ہے. وہ اسٹرگل ان جو بیوروکریٹ بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو یہ اسٹرگل پسند نہیں ہے، ہمارا ریزسٹ پسند نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے دیگر اداروں کو اور پولیس کی مدد سے انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹا مقدمہ درج کیا. یہ پہلی بار میرے اوپر مقدمہ درج نہیں ہوا. میرے اوپر 5واں پرچہ کاٹا گیا ہے 4 سال میں. یہ 5واں مقدمہ ہے جو جھوٹا ہے. 4 پہلے جھوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے بنائے تھے، وہ بھی ملک دشمنی کے مقدمے تھے. اور ہم نے ایک مقدمہ جو ہمارے اوپر کاٹا گیا تھا، چوتھا جو اگلے سال میرے اوپر کاٹا گیا، اس میں میں نے اور میری ٹیم کے 2 عہدیداروں اسیس لگاری اور آکاش لاکھو، دونوں نے گرفتاری دی تھی. ہم نے ججز کے سامنے سرنڈر کیا تھا کوٹڑی جامشوروں میں، اور جج کو ہم نے بولا تھا اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں آپ کے آگے ہم ملک دشمن ہیں، ہم نے کوئی ملک دشمن ایکٹیویٹی کی ہے یا ہم نے ملک دشمن سلوگنز لگائے ہیں، تو یہ وہ ساری ڈیٹا لا کے ہمیں دکھائیں اور آپ کو دکھائیں، ہمیں ثابت کرے وتھ ایویڈنس کہ ہم ملک دشمن ہیں، تو ہم ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ وہ چیز ثابت ہی نہیں کر سکے کہ ہم ملک دشمن ہیں. ہم ان کے سامنے طلبہ حقوق کے لیے ریزسٹ کرتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو کیٹالاگ میں کہا تھا آپ ایڈمیشن لیں. کیٹالاگ انہوں نے دیا تھا ہمیں انٹی ٹیسٹ فارم کے ساتھ، اس میں لکھا ہوا تھا ہم یہ فیسلٹیز آپ کو دیں گے. اب وہ فیسلٹیز تمام تر طلبہ کو نہیں مل رہی یونیورسٹی میں، تو ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. یہ چیز ان کو غلط لگتی ہے. اس چیز نے ان کو یہ اس مقام پر پہنچایا ہے کہ یہ ہمارے اوپر جھوٹا مقدمہ عائد کر دیتے ہیں. سجاد چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد چانڈیو صاحب ایڈوکیٹ ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. سندھ یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس پر ایف آئی آر ہوئی ہے ان میں آرٹیکل 123 124 بھی لگائے گئے ہیں جو کہ کالونیل لیگیسی کا پارٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اسٹوڈنٹس پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے ان کی قانونی حیثیت کیا ہے اور لیگل گراؤنڈس اور لیگل کانسیکوینسز کیا ہیں ان کے؟ دیکھیں جی، ہمارے یہاں بدقسمتی سے پاکستان میں ایک پرانی روایت ہے، اور بالخصوص چھوٹے صوبوں میں جیسے سندھ اور بلوچستان ہے، آپ کو اس قسم کے واقعات وہاں بہت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہاں کے مستقبل کو کس طرح زد و کوب کیا جائے، ان کو ہراس کیا جائے، اور بالخصوص جو شاگرد طبقہ ہے اس کو کیسے دبا کے رکھا جائے. یہ روایت پرانی ہے اور چلتی آ رہی ہے، اور مختلف دوروں میں ان کے خلاف مزاحمت بھی ہوتی رہی ہے اور قانونی جنگ بھی چلتی رہی ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ لیگل، میں سمجھتا ہوں اپنے قانونی جتنا بھی مجھے ایکسپیرینس ہے اس حساب سے، اور جو میں نے ریلیونٹ جو پرووینس ہیں وہ دیکھے ہیں، تو
पुलिस को इस किस्म के कोई इख्तियारात नहीं है कि वो इस किस्म के केसेस दर्ज कर सके। देखिए यहाँ वैसे तो उमूमन आप लोगों ने सुना होगा कि हर एफआईआर कोई भी शहरी जिस वक्त चाहे वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस या कुछ ऐसे जराइम हैं जिनकी एफआईआर दर्ज करने के इख्तियारात आम शहरी को नहीं दिए गए पाकिस्तान के कानून के मूजिब। और एक तो रियासत के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो, और दूसरा मजहब के मामलात में अगर कोई जुर्म हो, जिसे हम आपने उमूमन सुना होगा ब्लास्फेमी के जो कवानीन है, तो इसमें उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। और पाकिस्तान के इसी कानून में एक पाबंदी है कि कोई भी आम शहरी या कोई भी पुलिस अफसर ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता सिवाय मुतल्लिका सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के। तो ये एक लीगल बड़ा ऑब्जेक्शन है जिसकी बुनियाद पे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम जाएंगे हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और इस एफआईआर के खात्मे के सिलसिले में हम आईनी दरखास्त दायर करने का सोच रहे हैं और शागिर्दों के साथ राब्ते में वी आर गोइंग देयर, क्योंकि पुलिस ने गलत दाखिल की। दूसरा देखिए इस मामला में बदकिस्मती सबसे बड़ी है कि जो हमारे इदारे हैं, बिलखुसूस जो सिंध के इदारे हैं, वो पिछले 15 बरसों से पूरी कौम वाकिफ है कि वो तबाह और बर्बाद कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ अभी 9 यूनिवर्सिटी सिंध की ऐसी हैं जहाँ पे कोई भी वाइस चांसलर मुकर्रर नहीं है जो कि उनको प्रोसीजर फराहम करता है कि सर्च कमेटी बनेगी, वो एडवर्टाइजमेंट होगी, वो नहीं कर रहे। और एडहाक की बुनियादों पे जो मुकर्रियां होती हैं, जो तकर्री होती है, तो डेफिनेटली एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि जो एडहाक पे आया हुआ बंदा है वो कुछ अरसे के लिए बैठा है तो वो माल बटोरने के पीछे होता है, या जो जितने पैसे दे के आके ओहदे पे बैठता है तो वो उसके कमाने के पीछे होता है। उसके लिए तालीम बेहतर करना, इदारे को बेहतर अंदाज से चलाना, उसके लिए कोई ऑप्शन होता नहीं है, प्रायोरिटी बुनियादें उनकी नहीं होती। तो ये है बदकिस्मती से। और इस केस में भी आपने अगर देखा होगा सरसरी, अगर इसके मेरिट पे हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द केस इन द कोर्ट, तो ये है कि पुलिस अफसर जो मुतल्लिका थाने पे है उसको कैसे पता चला इन तमाम शागिर्दों का पूरा तफसीलात जो है, जामे तफसीलात से वो कैसे वाकिफ था। हमें तो पता नहीं होता सिवाय अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके साथ कोई रूममेट होगा तो उसके मुतलिक तो शायद आपको पता हो कि ये कौन से गांव का है, कहां से रहता है, लेकिन हर किसी शागिर्द के मुतल्लिका गांव का पता, बाप का नाम, उसकी सरनेम, ये सारी चीजें डेफिनेटली इसमें आपको इन्वॉल्वमेंट नजर आती है कि वहां की जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया है ये सारे तफसीलात जो जामे तफसीलात है तमाम शागिर्दों के वो उनमें शेयर करते हैं। तो दिस इज अ बैड थिंग और इसको हम माजी में भी कंडेम करते रहे, इसका मुकाबला किया है, अभी हम कंडेम करेंगे, इसका मुकाबला कानूनी तरीके से, सियासी तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ मसरूर शाह साहब मौजूद है। मसरूर शाह एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन है। मसरूर शाह साहब, सिंध यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पर एफआईआर दाखिल हुई है इसमें पुलिस ने, आप क्या समझते हैं, क्योंकि इसमें पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान मुखालिफ कोई नारे लगाए थे, और हम ये देखते हैं कि एक कॉमन डोमिनेंट परसेप्शन भी यही है कि सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर के कोई रियासत मुखालिफ सरगर्मियां भी होती हैं। तो इस सारे मंजर इसमें आप क्या समझते हैं पुलिस की एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए? सबसे पहले तो ये बात है कि हम समझते हैं कि ये कल्चर डे सिंध यूनिवर्सिटी में बहुत से जो सालों से जिस तरह से सिंध में होता है, सारी सिंध में इस तरह से यूनिवर्सिटी में होता है, और सिंध यूनिवर्सिटी उसमें बहुत आगे होती है। तो हम समझते हैं कि ये इन्होंने एक बहाना बनाया है एंटी स्टेट नारों का, क्योंकि पहले तो इन्होंने पानी के मुजाहरों पर भी फायरिंग की थी गद्दारी की, तो उस वक्त कौन से एंटी स्टेट नारे लगे थे। तो बेसिकली ये एक जो बहाना इन्होंने ढूंढा है कि एंटी स्टेट बहाना करके, नारों का बहाना करके, जो यूनिवर्सिटी में एक डेमोक्रेटिक स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जो स्पेस बन रही है, जो गुज़िश्ता आपने अरसे में देखी है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। और जो कल्चरल एक्टिविटीज, डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स एक्टिविस्टों की, उनको ये बंद करना चाहते हैं। चले मान लें कि कुछ लोगों ने एंटी स्टेट एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि लगाए, तो आप जिन एफआईआर की है, तो एफआईआर के बाद आपने जो इतनी बड़ी पुलिस लाकर यूनिवर्सिटी में का घेराव किया, मुहासरा किया, तो वो किस वजह से था? उन्होंने एंटी स्टेट एफआईआर की आप कार्रवाई कर लेते, ये क्या तरीका था? तो इनसे जाहिर होता है कि इनकी जो नीयत थी वो सिर्फ ये नहीं थी कि 2-3 स्टूडेंट्स या कुछ लोगों ने जो एंटी स्टेट नारे लगाए हैं या नहीं है काम पता नहीं, लेकिन उनका नीयत थी वो ये थी कि इसको बहाना बनाकर पूरी यूनिवर्सिटी में एक खौफ और रास की जो सूरत हाल है वो पैदा की जाए। तो हम इसको कंडेम करते हैं और हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स को फंडामेंटली राइट है कि वो प्रैक्टिस करें वहाँ पर जो भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, डेमोक्रेटिक जो भी एक्टिविटीज हैं, और जो पॉलिटिकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से जो एक्टिविटीज हैं, उन्हें खुली ये इजाजत है हर तंजीम को कि वो वहाँ पर अपना इजहार कर सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन कर सके। वजाहत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वजाहत सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत ही मुतहर्रिक शागिर्द हैं, और वजाहत ये क्या हो रहा है सिंध यूनिवर्सिटी में मामला, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर सिचुएशन टेंस ही रह रही है, और इवेंचुअली हमने देखा कि 2 दिन पहले एफआईआर भी दर्ज हो गई तकरीबन 250 से 300 स्टूडेंट्स पर। जी बाबर, बड़ी मेहरबानी। बात यह है कि सारे मामले को समझने से पहले हमको सिंध यूनिवर्सिटी को समझना होगा कि सिंध यूनिवर्सिटी सिंध के अंदर वो तलीमी इदारा है जो आज से नहीं, 2 सालों से नहीं, लेकिन पिछले अगर आप 50 सालों की सियासी तारीख देखेंगे तो उसमें सिंध यूनिवर्सिटी ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और वो यही सिलसिला है कि सिंध यूनिवर्सिटी
سندھ کے اندر جو بڑی بڑی سیاسی تنظیمیں ہیں ان کے لیے بھی بڑی مطلب انسپائریشن کی ایک چیز رہی ہے. تو سندھ یونیورسٹی میں ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, تو بات یہ ہے کہ سندھ یونیورسٹی کے اندر ہر سال مطلب جو سندھ میں سے سیلیبریشن ہوتی ہے کلچر ڈے کے حوالے سے, تو سندھ یونیورسٹی میں بھی ہر سال 2-3 دن پہلے مطلب جو سیلیبریشن ہوتی ہے سندھ پوری میں, تو ہم یہاں پہ کلچر ڈے مناتے ہیں. تو ہر سال یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ جب بھی ہم کلچر ڈے مناتے ہیں تو سندھ یونیورسٹی کے اندر جن قوتوں کو, جن انتظامیہ کو سندھ کی ثقافت سے, شاگرد کی جو اسٹرینتھ ہے اس سے مسئلہ ہے, تو ہر سال یہ ایک ایسی روایت ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں, ثقافت کا دن منا رہے ہیں, تو کیسز تو ضرور بنیں گے. ابھی بھی ہم جب بیٹھے تھے دوست, سیاسی دوست, تو ہمیں پتا تھا کہ ہم جب سیلیبریشن کر رہے ہیں, کلچر ڈے منا رہے ہیں, تو ہم پہ کیس بنیں گے. اور ہر بار یہ کیس بنتے ہیں, لیکن عدالتوں میں جب یہ کیس جاتے ہیں تو وہ جھوٹے کیس ثابت ہوتے ہیں. تو اس بار بھی سندھ یونیورسٹی میں وہی روایت ہے. وہ فراز صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ یہ 1-2 دن کی بات نہیں, نصف صدی کا قصہ ہے. تو نصف صدی کا ہو نہ ہو, لیکن 2-3 سال تو سندھ یونیورسٹی میں ہم جب بھی رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ثقافتی دن مناتے ہیں, کوئی جلوس نکالتے ہیں پانی کے لیے, فیسوں کے معاملے پہ ہم جب جلوس نکالتے ہیں تو ہم پہ سندھ یونیورسٹی میں غداری کے جھوٹے مقدمات بنتے ہیں, لیکن وہ آگے جا کر جھوٹے ہی ثابت ہوتے ہیں. جس دن آپ پر مقدمہ درج ہوا اس دن آپ سمیت تقریباً 10 تک اور بھی طلباء و طالبات تھے جن کو نامینیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ 250 سے 300 اور بھی نامعلوم اسٹوڈنٹس انہوں نے گنوائے تھے کہ ان پر بھی مقدمہ درج کیا گیا. تو آپ بتائیں کہ اصل میں اس دن ہوا کیا تھا, اور اس کے پس منظر میں بھی کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے کہ یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری سے کوئی دستی بم ملا ہے. تو اس ساری پس منظر کیا ہے, اس دن اصل میں دراصل ہوا کیا تھا جس دن آپ پر مقدمہ درج ہوا؟ ہر سال سندھ یونیورسٹی میں کلچر ڈے منایا جاتا ہے, لیکن اس بار انتظامیہ نے کلچر ڈے منانے کا سرکولر وغیرہ نہیں نکالا. تو طلبہ ہمارے پاس آئے, ہم ان کے لیے, ان کے حقوق کے لیے اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں طلبہ. تو وہ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ کلچر سیلیبریٹ نہیں ہو رہا, آپ کلچر سیلیبریٹ کرائیں. ہم نے کوئی ایسا ایونٹ نہیں کیا, کلچرل ایونٹ نہیں ہوا, آپ آئیں, ہم کلچر سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہماری ٹیم سندھ یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس گئی ہے, انہوں نے ان کو بولا ہے کہ آپ اپنا نوٹیفیکیشن نکالیں اور سرکولر دیں کہ اس تاریخ کو کلچر سیلیبریٹ ہوگا, تو طلبہ کلچر سیلیبریٹ کریں گے. کلچر سیلیبریٹ کرنا تو کوئی ملک دشمنی یا کوئی ہنگامہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب تو ہم اجازت نہیں دے سکتے, امتحان آ گئے, امتحان قریب ہے, ہم آپ سے امتحان لیں گے, ابھی ہم کلچرل ایکٹیویٹی نہیں کرائیں گے. تو ہم نے کہا جو ایگزام ہے وہ 12 تاریخ کو ہے, 12 دسمبر کو ہے. تو ہم نے کہا ہم آپس میں بیٹھ گئے, جو تمام طلبہ تنظیم تھی یا شاگرد اسٹرگل اتحاد ہے ایک ہمارا, وہ ساری تنظیمیں ساتھ بیٹھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کلچر ڈے 1 دسمبر کو منایا جائے گا سندھ یونیورسٹی میں. تو ہم نے اناؤنس جیسے ہی کیا تو انہوں نے 2 دسمبر اناؤنس کیا سندھ یونیورسٹی انتظامیہ نے. انہوں نے کہا کہ 2 دسمبر کو کلچر ڈے سیلیبریٹ کیا جائے گا, لیکن ہماری کال پر تمام طلبہ آئے 1 دسمبر کو, انہوں نے کلچر سیلیبریٹ کیا, بڑی بڑی ڈانسز ہوئی, اور جیسے ہی کیا جاتا ہے کلچر اپنا سیلیبریٹ, ایسے ہی طلبہ نے انجوائے کیا, قومی گیتوں پر رقص کیا. تو اس کے بعد یہ پاگل ہو گئے, ان کی کال تھی 2 دسمبر اور ہم نے 1 دسمبر کو کال دے دی, کیونکہ انہوں نے پہلے دی نہیں. اب جب ہم نے دی تو کل کلچر ہے, ہم سیلیبریٹ کریں گے 1 دسمبر کو. تو رات کو یہ ایک نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں, تو 2 دسمبر کو ہم کلچر سیلیبریٹ کریں گے. تو طلبہ تو 1 دسمبر کو آ گئے, 1 دسمبر کو آئے تو انہوں نے کلچر سیلیبریٹ کیا. اس چیز نے ان کو پاگل کر دیا کہ جو طلبہ ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو تنظیمیں ہیں, وہ اب اتنا آگے نکل گئی ہیں, طلبہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو انہوں نے اس سے خوف زدہ ہو کر 1 دسمبر کی رات 7-8 بجے انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹا مقدمہ عائد کیا, اور 2 دسمبر کو انہوں نے پوری یونیورسٹی میں کرفیو لاگو کر دیا. انہوں نے جو ہمارا سیلیبس ایکٹیویٹیز, اکیڈمک ایکٹیویٹیز تھی, وہ ساری بند کر دی 2 دسمبر کو, اور پوری یونیورسٹی میں پولیس کی گاڑیاں بھاری نفری راؤنڈنگ کر رہی تھی اور طلبہ کو ہراساں کر رہی تھی. سارا دن انہوں نے طلبہ کو ادھر ہراساں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی آیا تھا. یہ کوئی سندھ کا ایک قبائلی علاقہ نہیں ہے, سرداروں کا علاقہ نہیں, یا ڈاکو نہیں رہتے ہیں, کوئی چھاونی نہیں ہے فوج کی جو ادھر اتنی بھاری نفری آپ نے لا کر کھڑی کر دی. یہ طلبہ ہیں, 21ویں صدی ہے,
पूरी दुनिया सुने हमारी बात को। ये जो सिंध यूनिवर्सिटी इंतजामिया, रजिस्ट्रार, वीसी गुंडागर्दी कर रहे हैं या हमारे साथ, इन हमारी आवाज को सुना जाए। और दूसरी बात जो आपने की कि जो इन्होंने कहा कि दस्ती बॉम्ब मिले हैं, ये बात भी इन्हों के इदारों ने मुस्तरद कर दी कि ये फटाके थे, उनके कोई खोल थे पुराने, कोई किसी ने ऐसे ही लाकर रख दिए, उसने जलाए और फिर उन्होंने जो मिस हुए थे वो उन्होंने रख दिए। ये कई सालों से पड़े थे, अचानक इन्होंने निकाल दिए। इनका कोई मुलाजिम जाता है और अलमारी के बीच में देखता है कहीं सीएल के पास, तो वो निकालता है कि ये क्या है, पता नहीं, कोई खतरनाक मवाद है। और वो इन्होंने बम डिस्पोजल अमले को दिए, उन्होंने रिपोर्ट बनाकर सिंध पुलिस जामशोरों को दी कि ये जो है ये खोल है, ये ऐसे ही आतिशबाजी के खोल थे और ये और कुछ नहीं है, कोई भी खतरनाक मवाद नहीं है। ये इनकी लेवल है, ये तलबा के साथ ये सलूक कर रहे हैं। हम सिंध का शऊर है, सिंध यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सिंध का शऊर है, ये कल का फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर होगा। उस फ्यूचर को ये सारा दिन बंदूक दिखाते हैं, राइफल दिखाते हैं, क्लाशनकोफ दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। भाई हमने अगर दहशतगर्दी की है, आप कोई एक छोटी सी क्लिप मुझे दिखा दो, मैं, मेरे दोस्त अगर किसी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी में, अगर आपके पास एविडेंस है, कोई बंदा अगर मुल्क के खिलाफ है, तो जो चार्जेस जो मुल्क के खिलाफ बात करता होगा वो तो ये मेंटली तौर पर ये चीज ये बार भी उठाने के काबिल होगा ना। वो तो समझता होगा कि मेरे ऊपर तो ऐसा मुकदमा आयद किया जाएगा जो जिसकी सजा भी होगी, वो तो मेंटली प्रिपेयर होगा। लेकिन हमने अगर कोई दहशतगर्दी की है, मुल्क दुश्मनी की है, आप एविडेंस लाएं और हमें सजा दें। ऐसे 2, 3 या 4 लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया है, अगर आपके पास एविडेंस है तो सारे तलबा को सजा क्यों दी जा रही? अच्छा सर, माजी में भी हमने देखा कि स्टूडेंट्स पर हाल ही में कुछ महीने पहले स्टूडेंट्स पर इसी दफे के अंदर 124A के अंदर ही मुकदमा दर्ज किए गए थे कि वो कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें भी ये ऑब्जेक्शन रहा ही रहा होगा कि फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आया अप्रूवल ली गई या नहीं, तो उनके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आखिर में क्या बने थे जो माजी में मुकदमा दर्ज किए गए इसी आर्टिकल के तहत? देखिए, माजी करीब में कुछ मुकदमा दर्ज हुए थे यही इसी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें शागिर्दों ने जो था वो सरेंडर किया था। जो शागिर्द थे उन्होंने शायद आगे सरेंडर किया था, दे फेस द ट्रायल, और वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए थे। वो केस साबित नहीं हो सका उन पे। जैसे हम समझते हैं कि साबित करना इस किस्म का केस तो साबित तो कर नहीं सकते, लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा ना, इसका मकसद जो इसके पीछे होता है वो जदोकोब करना, हिरास करना, सबसे ज्यादा ये होता है इनका मकसद, इसके पीछे के शागिर्दों को कंट्रोल में रखें या काबू करें। तो ये डेफिनेटली उस नियत से ये केस दाखिल किए जाते हैं। सर एक और क्वेश्चन, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर में भी ये बताया है कि वो एंटी स्टेट नारे लगा रहे थे, और ये पुलिस का मौक़िफ़ यानी कि यहाँ पर हम ये समझते हैं कि ये रियासत का मौक़िफ़ है। तो आप क्या समझते हैं, क्या सिंध यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं वो ज़ाहिर पुरअमन हैं और कोई ऐसी हाल ही में कोई ऐसी एक्टिविटी उनकी तरफ से नहीं हुई जिसमें हम कहें कि वो बड़े वहां पर टेरर फैला रहे हैं या कोई बड़े वहां पर अलहदगी पसंद अनासर हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस ने एफआईआर में ये बताया है कि वो एंटी स्टेट नारे लगा रहे थे, तो क्या आप ये समझते हैं कि वहां पर ऐसे अनासर मौजूद है, और क्या ये स्टूडेंट्स इतने पावरफुल हैं कि इस किस्म का ओपिनियन अपना सकें और इस किस्म के जो वो अमली इक़दाम उठा सकें? देखिए, हम समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में या सिंध की जो भी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, स्टूडेंट इश्यूज पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और दीगर जो भी मसाइल हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, इस पर एक्टिविटीज होनी चाहिए। अब कुछ लोग अगर जो है वो ऐसा ओपिनियन नहीं रखते और वो चाहते हैं कि हम एक जो है वो रेडिकल स्लोगन से सियासत करें, तो वो उनका जो है वो अपना व्यू है और वो व्यू रखने का हक रखते हैं। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी में अगर कोई तंजीम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही हो जो एक्टिविटी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो है वो सिचुएशन क्रिएट कर रही हो, तो फिर तो हम कंडेम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ व्यू रखने से आप उन पर टेररिज्म के चार्जेस नहीं लगा सकते और उन पर जो है वो ये बगावत के केसेस नहीं कर सकते। एक जगह पर एक खूनख्वार जो तंजीमें हैं तहरीक तालिबान की तरह, उनसे आप बात करते हैं जिन्होंने जो प्रूव है कि उन्होंने जो है पाकिस्तान में अटैक किए, और यहाँ पर आपका जो रवैया है वो ये है कि अगर 2-3 तंजीमें अगर ये समझती भी है, व्यू रखती हैं, तो उस पर आप ना सिर्फ उन पर ये आप चार्जेस लगाते हैं, पर पूरी यूनिवर्सिटी का जो है वो मुआसरा करते हैं। वो सारे जो तलबा है उनमें खौफरास की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो हमारा व्यू तो यही है कि सिंध शागिर्द महाज जो हमारा विंग है,
मज़ामत तहरीक का, वो तो समझते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, स्टूडेंट इश्यूज पर यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। हमारा भी ये नहीं है कि रेडिकल जो सेपरेशन या आज़ादी की बुनियाद पर यूनिवर्सिटियों के अंदर सियासत होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के जो दायरे कार है सियासत का वो लिमिटेड होना चाहिए और स्टूडेंट के हवाले से होना चाहिए। लेकिन अगर कोई समझता है इसी तंजीम में तो वो भी रखने का अख्तियार रखती है, उनको हम जो है वो मना नहीं कर सकते या उस पर हम टेररिज्म की, गद्दारी के और दहशतगर्दी के चार्ज नहीं लगा सकते। अच्छा, एक और भी बात ये है, कॉमन परसेप्शन ये है कि क्योंकि कुछ दिन पहले एक वाकया रिपोर्ट हुआ था जो रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं उनमें, कि सिंध यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी की छत से कोई दस्ती बम मिले हैं। तो इसके पस मंजर में भी सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि आप फिलहाल ये कल्चरल डे मत मनाएं, बाद में इसे एक्सटेंड कर लें। तो आपको नहीं लगता कि आपको सिंध यूनिवर्सिटी की उस सारी सूरत हाल में देखकर वो जो सिंध यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन था उसको आपको कबूल करना चाहिए था? देखिए, हम ये समझते हैं कि जब भी हम मुतहरिक होते हैं तो जो इंतजामिया है और यहाँ पे जो इदारे हैं जिनको ये सारी चीजें पसंद नहीं है, तो वो हमारे तहरुक को पीछे करने के लिए, पीछे धकेलने के लिए हमारी ताकत को वो इसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। अभी ये भी जो मैंने कहा कि हमारे जैसे FIR हर साल झूठी साबित होती है, तो ये जो दस्ती बम बरामद होने वाला किस्सा था वो भी पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और आपको ये पता होगा कि ये दस्ती बम नहीं लेकिन छोटे पटाखे जो थे वो उनसे बरामद हुए। तो हमने उस सारे मामले के बाद भी कल्चर डे मनाने का इरादा और फैसला इसलिए किया कि हम समझते हैं कि ये जो सारे मामला इंतजामिया की तरफ से होते हैं ये सारे झूठे और झूठ में मुबनी होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि शागिर्दों का जो तहरुक है, शागिर्द जो भी दिन मनाते हैं, जिन भी मामलों पे वो आवाज बुलंद करते हैं, उनको पीछे धकेला जाए। तो अगर हम इस मामले के बाद खामोश हो जाते तो इससे ये साबित होता कि जो इंतजामिया और इदारे जो यहाँ पे जो करना चाहते हैं और हम उससे डर गए हैं और आम शागिर्दों में भी यही परसेप्शन होता। तो हम समझते हैं कि शागिर्द तंजीमों के लिए भी ये लाजमी हो गया था कि सारे झूठे मामले के बाद जो दस्ती बम बरामद हुए वो दरअसल जसाब के प्रोग्राम के दिन और एक दिन पहले वो बरामद हुआ, और उसका सबब भी यही था कि वो प्रोग्राम कैंसिल करवाना चाहते थे और आम शागिर्दों में खौफ फैलाना चाहते थे। अगर वो हम उनकी चीज ये इंतजामिया की चीज मान लेते तो इससे ये साबित होता कि इंतजामिया जो कर रही है, इंतजामिया जो झूठे मामला बना रही है, शागिर्द उससे ये परसेप्शन आमतौर पर भी होता कि वो मामला सही है और शागिर्द जो है वो गलत है। तो हम शागिर्द तंजीमों के लिए भी ये लाजमी हो गया था कि हम इंतजामिया को झूठा साबित करें, और वो हम सिर्फ न अपनी बातों से न करें, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की बम वाले मामले पे तो वो भी झूठा साबित हुआ। तो इससे साबित होता है कि इंतजामिया ये चाहती है कि शागिर्दों का जो तहरीक है वो पीछे धकेला जाए। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल है हमारा कि ये क्योंकि जिन तलबात पर मुकदमात ये दर्ज होते हैं वो अपने कैरियर, जो प्रोफेशनल कैरियर होता है उसमें एंटर होने वाले होते हैं, और उन पर इस किस्म के संजीदा तरीन मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, यानी जो कि मुल्क के साथ बगावत के ज़ुमरे में आते हैं, तो ये उनके कैरियर में क्या क्या मुश्किलात पैदा कर सकते हैं ये FIR से ये मुकदमात? जाहिर है, देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में FIR का दर्ज होना किसी के भी खिलाफ हो तो वो उसको डिस्टर्ब तो करता है। आपके इल्म में होगा कि कुछ 2 बरस पहले हमारे खिलाफ कुछ मुकदमा दर्ज हुए थे जब हमने बहरिया टाउन के नाजायज कब्जे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया था। तो 30 से 32 FIR दहशतगर्दी की दाखिल की गई थी और हमने मुकाबला किया। डेफिनेटली जहां तक डिस्टर्ब होने का है तो डिस्टर्ब तो जरूर होंगे, लेकिन ये बदकिस्मती बड़ी है कि इस रियासत को ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस किस्म के मुकदमात करके वो लोगों को पीछे धकेल के या उनको काबू में रखने की जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी तो पिछले 73 वर्षों से तो नहीं हो सकी। कितने मुकदमात हुए थे, किस किस पे नहीं हुए थे मुकदमात। गद्दारी के इल्जाम, जहां तक अब आजकल के तो शागिर्दों की बातें, फातिमा जनाह से लेके कौन से इन्होंने सियासतदान को छोड़ा जिसके ऊपर गद्दारी के मुकदमात इन्होंने नहीं किए या इल्जाम नहीं लगाए, उसका नतीजा तो कोई अच्छा नहीं हुआ ना, इनको नहीं मिल रहा, लेकिन वो शायद अपने पिछले तजुर्बे से सीख नहीं रहे, वही बात अभी तक दोहराए जा रहे हैं।